Okay. Hmm. I welcome Shamshika. नमस्ते Are you with me नमस्ते for beginning? Yes, sir, you can start, sir. Please do start. Okay. Okay. So thank you, Sanjita. We are going live now. We are starting the program. I was just waiting for one guest who is from USA. I do not know how we are not getting connected with him. Sir, the background music is too loud. Can you be a bit louder? Uh, could you connect yourself with YT Prashad? YT Prashad से connect हो सकी हो Shamshika? You are connected, sir. You're connected, and I No, can. no, I am connected, but I am talking about YD Prashad. Anyway, Uh, uh, I welcome you all. Uh, Dr. A.K. Pandey, Sri Bhairavlal Das ji, and Padma Shri Dr. Pandav Saab. I welcome you all on behalf of Society for Empowerment. And today, our another guest is Professor Y.D. Prasad, a well-known historian, and he is scheduled to give the inaugural address, but he is in USA, so I do not know. I'm also not getting connected to him, but he may come anytime. So the topic for today's discussion webinar is on ancient university. That is the first university of the globe, Nalanda University, ancient Nalanda University, and its role in Indian culture and civilization. Why we have taken up this theme is because the most of the uh, this year is being celebrated as the year of uh, 75 years of independence of our country, in which uh, we call it as Amrit Mahotsav. So it's a part of the first webinar during the Amrit Mahotsav, and I thought that we should begin with something unique of Indian culture and civilization to celebrate the 75 years of the independence of the country. And in that, this Nalanda University came to my mind that it can be a good point to begin with. So for that, because this is not my subject, it's a subject of ancient history. When in history I contacted several historians, some said that no, they are from modern Indian history. Some said they are from medieval Indian history. So, so, so ultimately, I got one well-known professor of history who agreed to give the inaugural address. That is Professor Y.D. Prasad. Yes, till yesterday I had a contact with him. This morning also, but I do not know why he has not turned up. Maybe some connectivity problem. So this is the situation, and today we also welcome the viewers of the our viewers who are viewing us on their screen, uh, and from them there is a request that if the program is also in Hindi, then they may be able to understand it in a better way than in English. So today's program will be bilingual. The speakers are requested that they are free to present their views, maybe in Hindi or English.
Uh, there is no bar that we should go for English, but English and Hindi both the bilingual will be today's uh, media for the medium for the discussion and presentation. The our web portal uh, friends who are watching, their special request is for Hindi because they will say they said that they will try to understand the role of ancient, rather the first university of the world, how did it and how it was doing during the period when it was uh, created. So, with this word, I welcome you all once again, whether you are on our website or on live program. And if there is questions will be taken at the end of the discussion. So, with these words, once again, I welcome you. And Nalanda, you see, Nalanda is a place that is located in the state of Bihar in India, and Nalanda is the university is in between. There is a another small city called Rajgir and Nalanda. It is located in between that. So, you are most welcome, sir. Professor Wadi Prasad. So, I am happy to see you. So it's good. So in 1967 and 66 and 67, I did some field work on Nalanda and Rajgir, and that was published in book form in 1978. And that is there also we were those, and that book also I have tried to understand the ancient history of that Nalanda University, the ancient Nalanda University. In this, I also wanted to bring the present Vice Chancellor of Nalanda University, located in Nalanda itself, but somehow or other she could not make it. She could not come. But she has assured that she will have some collaborative work on this subject with Nalanda University. I do not know whether in future we will be able to take it up or not. So, with these words, I would like to request Professor Y.D. Prasad, who is a well-known historian, and he was also director of ANCNA Institute of Social Studies, and he very kindly agreed to give the inaugural address. So I will request him to give the inaugural address. Professor Y.D. Prasad Sahab. Morning for me, it's 5:40. So good morning to all of you. Sachindraji is a very good friend and colleague, I should say. I was at AN Sinha Institute for 6 years with him. And today's program is on a subject which is of my interest, not only that ancient Nalanda University contribution to Indian culture and civilization is enormous. I originally belong to this area and I have been visiting, although I didn't live there, because earlier it used to be part of Patna district. And I am a
pure and simple Patnawala. And I would like to begin my address by saying that a personal note is very relevant in stating the importance of ancient Nalanda. I would give a personal note to my talk. I was visiting China a couple of months, years ago. The Chinese government had organized a program there was a loud clap the moment I said that I come from the land of Nalanda University. So you can still imagine how important the very name of Nalanda is. And it's still the identity being from that place attracts people to know your standard of knowledge and your belonging to a culture and civilization which is of enormous importance to all of us even today. In fact, India, ancient Indian culture and civilization is symbolized by the ancient Nalanda University. I would not go into the details of it, and I just say that the Nalanda University came into being when on this globe there was neither Cambridge, nor Oxford, nor Harvard, nor Yale, but Nalanda existed in a time when all the exist. And you know, a very interesting thing that in order to get admission in this university, Nalanda University, one applicant had to go through an interview that used to be taken by the gatekeeper of the university. And unless you cleared that interview, that test, you were not admitted. And its global character was that scholars used to feel very happy when they were admitted to this university. The focus of the university was not on developing instruments for destruction that we have been seeing today. Its purpose, its objective was to inculcate a sense of self-discipline and a purpose that aimed at creating a human being. Its global character can be gauged, could be judged by the fact
that although it came into being in 5th century, it was ransacked by Bakhtiyar Khilji, and after that destruction, it continued for 2 more centuries. Uh, the purpose of the university was to give message to human beings of message of peace, which is badly required these days in war-torn world. And the focus of the university was very different subjects and disciplines, which included not only uh, science but also religion. As you know, it was a center of Buddhist culture. That is because it also attracted people from a very good number of well-known scholars came from China, Korea, Tibet, and other countries in the vicinity. So we find that it was a global center of higher education, and it gave the very message that is still relevant. You, as human being, should focus your attention to peace, humanity, and these subjects were essential for those who came to study here. And it has a record number of foreign visitors. They used to live here. Many important visitors who came and studied and taught also here include the Chinese scholars Paiyan and Wensang. This university is now in ruins. I mean, the ruins are there telling its glorious past. The recent excavations have shown that this हा गोविंदराव university, नमस्कार. uh, दिल्लीला आला? uh, बर, कुठं राहिला तुम्ही? uh, आठगंजला. बर बर so बर. I need not go into अरे वा. details how the university ran, but it's बर, बर. common knowledge खूप that छान. the university source of income was बर through बर. the तर उद्या village. तुम्ही माझ्या ऑफिसला या दुपारी 1 वाजता. मी तुम्हाला पसंत सांगतो पत्ता वगैरे. 1 वाजता मग जेवण घेऊया आपण. ठीक आहे, उद्या 1 वाजता ठेवतो मग. Yes. So I think today we have the need to focus our attention to the objectives that this university had in ancient times, and the need of the hour today is that we must try to achieve peace through
our self-discipline and through encouraging the peace studies and having this sense of belonging to a world where only peace prevails. We are in a phase of history when the world is threatened by destruction and it's on the verge of great devastation. So we must continue to send the message of peace and self-discipline through meditation and through developing true religious spirit. This university was like a place where the civilizations came together. And in fact, Nalanda was uh, like Jerusalem, where so many religions mingled. Here we have Buddhist, the followers of Lord Buddha, Mahavir, and also the cult of Sanatan Dharma also continued here. So in fact, the Indian ethos is that here we have a center which believes in Sarva Dharma Sambhav and all religions are respected. The whole world is a family, Vasudhaiva Kutumbakam, and that spirit is still required to have a peaceful world today. And it is a very good opportunity to send this message through this webinar that India is the whole world is a family. So the human touch must be there while we study, not only that we develop destruction technology that would destroy our civilization. मनोज पेपर नैपकिन चाहिए, पेपर नैपकिन मनोज. So I think let us focus back on the मनोज पेपर नैपकिन चाहिए. So I would thank Sachinderji and the whole team that you have selected a subject on which the whole world should focus, and a civilization which provides peace and tranquility must be evoked.
So, with these few words, I thank the organizers, particularly Sachindra Narayan, to have included me in this panel to discuss the importance of Nalanda. Even today, Nalanda has the attention of many other countries, and there have been a tradition to say that this place has not only given uh, has given place to great religious leaders and scholars. The unlucky part is that this was destroyed, but many valuable texts and books were carried to China by Wenshan and Fahian, and many valuable texts were taken to Tibet and Korea. So those documents still exist here, and we are lucky to have copies from there. And unfortunately, the attempt to establish Nalanda International University has not Yes. been very successful, and a lot of controversy has arisen regarding Hello. the uh, Yes. functioning of the Nalanda International University, which was headed by Hello. Amartya Sen. I'm coming And to the those office are side at very about unfortunate. 7:30. But I'm Nalanda coming to the office side has at something 7:30. in it, 7:15 and 7:30. land, which gives you a sense of Where are you? very, Okay, that's okay. Then that's fine. How's your brother? Right. Okay, bye. uh, so I would now request the panelists to elaborate the points which will be of interest to the. Thank you so When I thought of this webinar, you will be in my mind, but some or other I could not hear. So we can't hear you. Now I will request Padmashri Dr. Mandap Saab. Sir, please remove your earphones and then try to say something. Maybe then you'll be more audible. Am I audible now? Sir, just disconnect the earphones from the laptop. Am I audible? No, remove it. Remove the earphones from the. Please remove the earphones from the laptop. Then it will be more audible. Now it is audible. No, sir, you're not audible now. Not audible. No, sir, you're not audible. I am requesting Mandap to express his views on the subject. Is that clear? Dhanyawad. Can you hear me?
Swayam, can you hear me? Sir, you're audible. You are audible, sir. But Narayan sir is not audible. Maybe because he has to remove the earphones and But that to disconnect the earphones from the laptop, that's and the then he has to, and then he will just, maybe then things will be better. now he has asked me to speak. Okay, you can speak, sir. Okay. Namaste, namaskar, namaskaram. My esteemed panelist, Professor Narayan sir, मुझे दिल्ली में उनको पिछले हफ्ते का मिलने का मौका मिला एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर. डॉक्टर ए के पांडे सर, भैरवलाल दास जी, युवराज देव प्रसाद, आप अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. इज दैट ओके? कैन यू हियर मी स्वयं? Yes, sir, you're audible. देयर इज अ इको कमिंग. You're audible, sir. ओके, थैंक यू. तो युवराज देव प्रसाद, आप अमेरिका में कहाँ पे है अमेरिका में? Yeah, no, I have शिकागो. just come, 2 days ago, I came here, टू शिकागो. San Diego. My San Diego. son lived here, yeah. अच्छा, I have a friend in San Diego, सुशील दारिया, उसका नंबर मैं आपको दे दूंगा. Please. He's Please मोहन do. दारिया सन. मोहन दारिया का बेटा है, वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है. अच्छा. You must have heard of मोहन दारिया ना? हाँ, मोहन दारिया का, तो आपको मैं दे दूंगा नंबर. ठीक है सर? हाँ, दे देंगे. You have to give me your WhatsApp number. So my esteemed colleagues, नमस्कार. डॉक्टर युवराज प्रसाद ने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम. जब भी मैं कोई बात शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देता हूँ. कोरोना वॉरियर्स, पिछले 3 साल से हम बहुत परेशान रहे हैं. तो जो डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, नर्सेस है, वार्ड बॉयज है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, सिक्योरिटी पर्सन है, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ. इन लोगों ने बड़ी सेवा की हमारे कोरोना वायरस के टाइम पे, बहुत सेवा की. और नारायण सर, पहले वेव में 700 डॉक्टर गुजर गए. 700 डॉक्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ, एंड सेकेंड वेव 750 डॉक्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ. तो हम इनको सबको धन्यवाद देना चाहते हैं. अभी भारतवर्ष में और दुनिया में एक नया वायरस आ गया है, मंकी पॉक्स. पहले कोरोना के 19 का खत्म नहीं हुआ तो मंकी पॉक्स है. तो मेरा कहने का मतलब है, कोरोना वॉज अ पैंडेमिक ऑफ फियर. कोरोना ने सबको डराया. तो मंकी पॉक्स एक माइल्ड वायरस इन्फेक्शन है, इससे आप बिल्कुल मत डरिए. पिछले आपको मैं भेज दूंगा, मेरे इंटरव्यू में लिया था मैंने, मैं आपको भेज दूंगा उसकी स्ट्रिप, सभी को भेज दूंगा. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मंकी पॉक्स, बी सेफ. नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉक, जो हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, नारायण सर, कोशिश करूंगा. मेरे 6 मुद्दे हैं, 6 मुद्दे आज के, 7 पॉइंट, 7 है, 7 मुद्दे हैं. एक तो मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड. दूसरा है इसके जो फीचर्स है, इसके फीचर्स क्या है उसके बारे में बोलूंगा. तीसरा पॉइंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. ये शुरुआत कैसी हुई, कैसे डेवलप हो गया, और उसके बाद कैसे नीचे आ गया, इसके बारे में बात करूंगा. चौथा पॉइंट है कल्चरल लाइफ. कल्चरल लाइफ कैसे रही नालंदा यूनिवर्सिटी में. व्हाई इज देयर एन इको? पांचवा पॉइंट, Let me see, sir. Let me see what's happening. Sir, you try to speak now. Let's see. आई वाज सेइंग दैट मैं इस आज के भाषण के लिए मैंने 7 मुद्दे हैं कि जो बैकग्राउंड है, उसके क्या सेलिएंट फीचर्स है नालंदा यूनिवर्सिटी के, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और डिक्लाइन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद कल्चरल लाइफ कैसी रही नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या रहा नालंदा यूनिवर्सिटी में, क्या क्या उन्होंने समाज के लिए काम किया है. छठा पॉइंट है एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है. और 7वां
जो आज इस नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। Narayan sir, I had requested you to contact Dr. Sunaina Singh, who is the current Vice Chancellor of Nalanda, but she had multiple engagements, so that's why she couldn't participate. But she has shared with me some points that I'll speak on her behalf to you all in an interview she had given. तो सुनैना सिंह ने सबको प्रणाम भेजा है, जो अभी वाइस चांसलर है, सबको प्रणाम भेजा है मेरे थ्रू मी। तो जो पहला विषय है ओरिजिन, एक चीज है सर, युवराज प्रसाद जी सर, नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी है, और आज के दिन में भी सेंटर ऑफ हायर लर्निंग सेंटर है, मॉडर्न डे बिहार में भी। आपको पता है सर नालंदा का अर्थ क्या है? ना आलमदा, नालंदा क्या है? ना आलमदा। इसका मतलब है कि जो देने में कभी पूर्ण नहीं होते, कभी इनसेटिएबल इन गिविंग। ये नाम बुद्धा का है, इनसेटिएबल इन गिविंग, जिसको तृप्तता नहीं होती है, वो उसका मतलब है ना आलमदा, ये उसका मतलब है। ये पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रह चुकी है। इसकी बुनियाद 427 एडी में हुई। कब हुई? 427 एडी। एंड इट इज लोकेटेड नियर द नेपाल सदर्न बॉर्डर। जैसे आपने बताया शुरू में नारायण सर ने कि राजगीर के पास है, राजगीर। पहले देव साहब ने बताया कि पटना में था, पटना जिले में। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 427 एडी में हुई और वो 1197 तक रह चुकी है। करीब इसका 770 साल तक ये रही, 770 ईयर्स। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए, आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ बैटल। क्या था? आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ बैटल, ये विषय वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। इसका बैकग्राउंड था कि गुप्ता डायनेस्टी ने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। कुमार गुप्ता के समय पे ये बात हुई है, कुमार गुप्ता, और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ गुप्ता डायनेस्टी के और कुमार गुप्ता के कार्यकाल था। तो इस यूनिवर्सिटी पे 3 बार अटैक किया गया। एक बार नहीं, 1, 2, 3 बार अटैक किया। किसने किया? टर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल थे बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था, डिस्ट्रॉय किया था। पहला अटैक 12th सेंचुरी 1193 में हुआ। उसके बाद 2 बार और किया। इन्होंने जो अटैक किया सर, जो लाइब्रेरी थी उनको आग लगाई और वो 5 महीने तक जलती रही। कितने महीने तक? 5 months स्वयं। They burned the library and it was burning for 5 months. And today it is the UNESCO World Heritage Site. And in 2010, the government of India passed a resolution to revive the famous university. Very important turning point. 2010 May, they passed a resolution to revive the university. For what? For contemporary institutes. So it was established at Rajgir. Today, it is listed as an institute of national importance. ये रहा नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड। अब हम कोशिश करेंगे इसके फीचर्स क्या है। As I mentioned in the morning, it is referred as one of the great universities in recorded history. One of the great first universities in recorded history. And this was a large Buddhist monastery in Indian ancient kingdom of Magadha. Magad मतलब आज modern day बिहार उसको बोलते हैं। And Mahayana Buddhism was the primary subject of instruction. Secular disciplines like grammar, logic, epistemology, and science were also covered. Here are इसके features. यूनिवर्सिटी में 10 मंदिर थे, 10 मेडिटेशन सेंटर थे, and it had the world's largest library. I'll repeat,
इट हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी को खिलजी ने आग लगाई और 5 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, 5 महीने। इसके 3 विभाग थे, बिल्डिंग्स थे। रत्न सागर, वो 9 स्टोरी बिल्डिंग थी, 9 स्टोरी रत्न सागर। दूसरा था रत्न दादी और तीसरा था रत्न रत्न नरंजका। इसमें सिर्फ धार्मिक साहित्य नहीं था, लेकिन इसके ऊपर बुक्स थे, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर, साइंस के ऊपर, वॉरफेयर के ऊपर और बाकी विषय में इस लाइब्रेरी में थे। फेमस स्कॉलर्स जो है नालंदा के, 2 लोगों का नाम ले सकते हैं, नागार्जुन और आर्यभट्ट, जो एस्ट्रोनॉमर है। इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत थी, यहाँ पे डिबेट्स बहुत चलते थे, डिबेट्स, चर्चा बहुत होती थी, चर्चा बहुत होती है। एंड इसके लिए हजारों मॉन्क्स को बुलाया गया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। चाइनीज ट्रैवल हुआन देव प्रसाद ने बताया, युवराज देव प्रसाद ने बताया, चाइनीज ट्रैवल हुएन संग visited Nalanda University and he wrote a detailed account of the university. And Huan Sang stayed there for 2 years, 2 साल वो वहाँ रुके हैं। और उसके बाद आई सिंग अ चाइनीज स्कॉलर, 2000 स्टूडेंट्स वेयर हाउस, 2000 विद्यार्थी वहाँ रहते थे। और इसके लिए चलाने के लिए बाजू के 200 गाँव, 200 गाँव है, 200 विलेजेस फाइनेंस द विलेज। एंड विद्यार्थी दुनिया के सारे कोने में से आए, चाइना, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और बाकी एशियन कंट्रीज में आए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलता है कि इवन इंडोनेशिया से लोग आए थे, इंडोनेशिया। इन्होंने भी इस कॉम्प्लेक्स पे एक मोनेस्ट्री बनाई थी। क्या हुआ कि 1915 में इस यूनिवर्सिटी का सिस्टमेटिक इवैक्यूएशन हो गया, 1915। तब उसमें ये पता चला कि 11 मोनेस्ट्री और 6 बिग टेम्पल्स नीटली अरेंज्ड, 330 एकर्स में 12 monasteries और 6 big temples were there when they did the evacuation in 1915. And बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले, कॉइन्स मिले, सील्स मिले, इंस्क्रिप्शन हुए, जिसकी अभी नियर बाय नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में वहाँ रखा गया। इसमें एक खासियत थी, टीचर्स वेर एक्सेप्शनल एंड एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट। Nalanda was a very unique learning Buddhist center, very unique. इसके डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रिक्ट था, stringent, and everybody had to follow them. Very strict discipline. दिन भर में यहाँ चर्चा होती थी और सबको इसको भाग लेना जरूरी था। इसमें पूरा जवान और बूढ़े लोग जो है उसमें भाग लेते थे। जो चर्चा होती थी, बहुत इंटेंस चर्चा होती थी। और दूसरी बात है कि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी ज़्यादा एम्फोसाइज दिया था। तो इसमें एक्चुअली एक गुरुकुल का वातावरण था यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल, नॉट ओनली एकेडमिक बट ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एंड द प्राइमरी पर्पज वॉज टू मेक every student a responsible citizen. That was the important part of this. Early Indian education reflected an age of creativity and intellectual freedom. Continuous curiosity to comprehend the natural and worldly affair made the ancient Indian education system to its epoch. तो इसमें कंटेम्प्रेरी और पौराणिक चर्चा भी होती थी। हमारे हिंदुस्तान में जो एजुकेशन है उसके 2 मेन स्टेजेस है डेवलपमेंट के। पहला था गुरुकुल सिस्टम ऑफ वैदिक स्कूल और दूसरा था मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल was mainly the center of primary education. गुरुकुल was mainly the center for primary education. उसके बाद जो यूनिवर्सिटी हायर लेवल था वो आल्सो तक्षशिला और नालंदा में हुआ। और जो महावीर है, they were being the centers of institutional education, mainly focused on higher education.
Nalanda University was the coordinator of the institutional educational system. Nalanda Mahavirs were learning pieces which could be treated part with modern advanced centers. अब तीसरा जो मुद्दा है origin, development and decline of Nalanda University. The story of ancient Nalanda University is very long. I said it lived for 770 years. It started with a small vihar, उसके बाद वो expand हुआ महाविहार में and क्योंकि इन्होंने खिलजी ने अटैक किया, मैंने बताया ना, अटैक किया 3 बार. अब हम बात करेंगे चौथा मुद्दा, कल्चरल लाइफ एट नालंदा यूनिवर्सिटी. जो महावीर थे वो बहुत बड़े टीचिंग सेंटर बने, बहुत बड़े टीचिंग सेंटर होते, और इसमें मोनेस्टिक नेचर का जो कल्चर था उसको मेन स्टे रहा. इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट ओरिएंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, विजिबल था. एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग वाज बुद्धिस्ट. इट गॉट इट्स मैच्योरिटी एट नालंदा. In fact, the Buddhist religion got its maturity at Nalanda. The cultural life was a true representation of Buddhist sacred worship, rituals, and ceremonies. नालंदा में जो पुरातन जो एक्सकर्शन हुआ है उसमें काफ़ी सारे हमको ब्रॉन्ज और स्टोन के मूर्तियाँ मिली है. I mean, they're in variety of shapes. So, the study at Nalanda did not consist merely of theological knowledge of the Buddhist religion and philosophy. The student was required to perform the religious rites and worship images. इसमें सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी था. अब मेरा 5वां मुद्दा है नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है. नालंदा यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन, कल्चरल लाइफ वाज हाईली डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, moral and spiritual. Moral and spiritual. There was no place for violence. There was entire learning environment was full of love and mercy. That's why Buddhism succeeded in providing much more open and less ritualized education than Brahmanic teaching. I repeat this point. Because it was full of love and mercy, the Buddhism succeeded in providing much more open and less ritualized education than the Brahmanic teachings. The Buddhist way of life and Nalanda's unique teachings were left to unforgettable impact on the growth of the Indian civilization. So, Indian civilization में नालंदा यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है. इसके हम कंट्रीब्यूशन में हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं. First and foremost was in sphere of Buddhist religion and philosophy. That's number 1. Number 2 was field of education. And number 3 was on ancient Indian history. 3 important categories: Buddhist religion, field of education, and ancient Indian history. अब नालंदा का educational contribution क्या रहा? The direct contribution of Nalanda University was the early Indian education was invincible. It was the highest point of new area of institutionalized instructions. Broader perspective, this university education system was fully grown from Gurukul education system. So 2 categories थे. Primary education was Gurukul, higher learning center was Nalanda and Takshila. Early Indians used to begin their education in these Vedic schools, which ended in monastic learning centers. In this way, Nalanda University contributed a lot in the Gurukul education system in the way of its expansion, development, and transformation for the betterment. That was number 5. Now, I want to bring greetings from Dr. Sunaina Singh, who is the current Vice Chancellor of Nalanda University. She is an institutional builder. First Indian woman president of Shastri Indian Canadian Institution, first Indian woman. She was the former Vice Chancellor in Hyderabad
of English and Foreign Language University, EFLS. She had the longest, tallest pole installed in any Indian university. उन्होंने 108 फुट का फ्लैग पोल लगाया, which is tallest flag pole among all central institutions. She made her campus neutral, zero waste campus. Campus को उन्होंने बहुत अच्छा बनाया. It is currently home to students and scholars from 30 plus nationalities. These there are 6 schools and 20 plus academic programs. 6 school और 20 academic programs है. There are courses on sustainable development and management, environment and ecology, Nalanda heritage, history and archaeology. The Nalanda way of looking at is cultural excellence. Cultural excellence is given the top priority. विद्या दान उसका मोटो है. उसके ईस्ट एशियन कंट्रीज में कोलैबोरेशन है 17 देशों के साथ. Our main focus on education leads to liberalization. I repeat, education leads to liberalization. The campus is 455 acres, 455 एकड़ का है. And इसका main focus है harmony with natural environment and climatic conditions. It is a green university. The emblem of Nalanda Way was to live in harmony with nature. In 2017, there were only 3 courses. When Vice Chancellor Dr. Sunaina Singh came, there are 20 plus courses. 20 plus. इसमें क्या सिखाया जाता है? Main principle is ancient wisdom with modern state of technology. Ancient wisdom with modern state of technology. And how to tackle the emerging problems and translate most important ideas into action. तो इस आज के जो मेरे संभाषण हुआ आप लोगों के साथ, मैंने 6 पॉइंट्स पुराने यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, बैकग्राउंड बताया, इसके फीचर्स बताए, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कल्चरल लाइफ कैसे हुआ, कंट्रीब्यूशन क्या रहा और एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ. और 7वां पॉइंट, आज के दिन में प्रोफेसर डॉक्टर सुनैना सिंह की लीडरशिप में इसकी कितनी प्रोग्रेस हो गई. तो प्रोफेसर नारायण सर, माय एस्टीम्ड कलीग्स, डॉक्टर ए के पांडे सर, डॉक्टर युवराज देव प्रसाद जो हमसे सीआनडीओ से ज्वाइन किया है, भैरवलाल दास गुप्ता जी, एंड स्वयं फॉर कीपिंग द शो गो. आप सब लोगों को मेरा प्रणाम. आपने मुझे मौका दिला मेरे कुछ विचार रखने के बाद. I worked at the All India Institute of Medical Sciences. I've been there since 1971. So I spent 45 continuous years at AIIMS. It is the medical Nalanda University. Narayan sir, All India Institute of Medical Sciences is the modern day medical Nalanda University. एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ, 75th year of independence है. तो 75 years में 1947 till 2022, they have identified 75 doctors who are thought leaders. और मैं बड़े खुशी के साथ और नम्रता के साथ करता हूँ, उसमें डॉक्टर चंद्रकांत पांडव का भी नाम है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत पांडव जी. आपने अच्छी बातें बताई, उसका इतिहास और वर्तमान भी आपने बता दिया. और सुनैना जी से जो आप बातचीत चलता है कि वर्तमान में यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, और ये अच्छी बात है आपने बताया. तो जो नालंदा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है. जैसा कि आपने बताया, प्रोफेसर युवराज देव प्रसाद जी ने भी बताया कि वहाँ से शुरुआत हुई हमारी शिक्षा की, और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ. बौद्ध धर्म का ही नहीं, राजगीर में अपने पुस्तक में मैंने लिखा है कि वह सनातन धर्म का भी उतना ही बड़ा स्थान है जितना बड़ा वो बौद्ध धर्म के लिए है, और उतना ही बड़ा वह दूसरे अन्य धर्मों के लिए भी है. तो ये उसका
जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, सबको एक साथ अपने आप में आत्मसात कर लेती है, वह वहाँ बिल्कुल देखने को मिलता है। हालांकि अब तो उसके रेमिनेंस हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में विश्वविद्यालय आया है वो कुछ इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, तो हम लोगों को प्रसन्नता हुई। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए हम लोग थोड़ा और एक जोर बेगुनाह करेंगे, ऐसा भी आप लोगों को फेसबुक पे और उसकी रिक्वेस्ट आ रहा है। सर मुझे एक मीटिंग है, तो आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और मैंने जो थोड़ा आपके साथ सामने प्रेजेंटेशन किया उसकी कॉपी मैं भेज दूँगा। ठीक है, ठीक है, भेज नमस्कार दीजिए। जी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। सभी अब मैं पैनलिस्ट श्री को नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। अब मैं डॉक्टर भैरव लाल दास जी से आग्रह करता हूँ कि वह अपनी बातों को रखें। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर युवराज देव प्रसाद जी का आज पुनः दर्शन करने का मौका मिला है। मैं कुछ ही दिन पहले इनके घर पर भी गया था। आज जो विषय रखा गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चंद्रकांत पांडव जी का सर का बहुत समय बहुत कीमती है, वो तो उनको जाना था, चले गए। सही बात। उन्होंने नालंदा जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है उसके बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। लेकिन हम जो पटना में रहते हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमें अखबारों के माध्यम से या कभी-कभी किसी सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिलती है, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोगों की ये इच्छा होती है, हम लोगों की ये आकांक्षा रहती है जो ये इस यूनिवर्सिटी का विकास उस यूनिवर्सिटी के तर्ज पर ही हो और हमारा स्थान पूरे विश्व में शैक्षणिक जगत में वहां तक पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और हम चाहते हैं जो और तेज गति से यह विश्वविद्यालय आगे बढ़े। अभी मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी काफी चीजें सामने आ चुकी हैं जो इसका वैभव कितना सुंदर था पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से एक सप्ताह पहले, एक जो जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी का अभी रिमेंस है उसके बगल में एक तालाब है। उस तालाब में एक योजना का एग्जीक्यूशन हो रहा था बिहार गवर्नमेंट के नल जल योजना के अंतर्गत में, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट का, छोटे से इरिगेशन प्रोजेक्ट का। उस तालाब की उड़ाही हो रही थी। उस तालाब के उड़ाही के क्रम में वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली और उस मूर्ति को मिलने के बाद, जैसा कि पूरे बिहार में होता है, जैसे ही मूर्ति मिलती है उसके बाद लोगों में एक धार्मिक जोश आ जाता है, उबाल आ जाता है और लोग उस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं, मंदिर बनाते हैं, फिर जो होता है। तो वहां भी यही हुआ, लोग जैसे ही मूर्ति मिली, लोग मूर्ति को लेकर के चले गए अपने गांव में, पूजा वगैरह करने लगे। जब लोगों को जानकारी मिली, क्योंकि वहां पर में उसके जस्ट बगल में ही एक म्यूजियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का म्यूजियम है वो, और वो साइट भी एएसआई का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार का साइट है। तो जैसे ही वो मूर्ति मिली तो लोग सोचे भाई जाकर के देखते हैं कौन सी मूर्ति है, कहाँ मिली है, क्या, जो एएसआई का अपना एक डिसिप्लिन होता है। तो वहां पर मैं जाकर के पता चला जो मूर्ति तो चली गई, लेकिन उन लोगों ने इस तालाब के उत्खनन के क्रम में उस पूरे साइट को तहस-नहस कर दिया है और शायद वैसा तहस-नहस बख्तियार खिलजी भी नहीं किया होगा उस लाइब्रेरी का। तो इन लोगों ने मना किया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और एएसआई के बीच में ठन गई, बात आगे बढ़ी, अखबारों में गई, हाकिमों तक गई, अखबार में छपने के बाद बात पटना तक आई, फिर वो बड़े लेवल पर इंटरवेंशन हुआ, फिर कहानी रुक गई। लेकिन वो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, छोटे तबके से मझोले तबके के अधिकारी इन्वॉल्व थे, उनको इतना भी नहीं पता है जो एएसआई का रूल क्या होता है। नालंदा यूनेस्को हेरिटेज है, इसके कितने मीटर के अंदर में कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करनी है और एक्टिविटीज करने से पहले एएसआई का प्रॉपर परमिशन चाहिए। और जब ये सब बातें उनको कही गई कि भाई आप ये बहुत गलत कर रहे हैं जो यहाँ पर में
उत्खनन करवा रहे हैं, ये तो हिस्टोरिकल साइट है, आइडेंटिफाइड साइट है ये, लेकिन वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी ये शिकायत है इस नालंदा यूनिवर्सिटी से, इस सेमिनार के माध्यम से, जो कम से कम नालंदा के आसपास में जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहां पर उनके स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को सर्वे कराएं, वहां पर एक्सप्लोरेशन काम करवाएं, वो अपने तरह से वहां की रिपोर्ट बनवाएं, सरकार के साथ कोलैबोरेशन हो। यही एक यूनिवर्सिटीज है जो न सिर्फ बिहार सरकार, न सिर्फ भारत सरकार, बल्कि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन सब का इनके साथ रिलेशन है और उन सब के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन यदि फिर भी हमारे इस वर्ल्ड हेरिटेज की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसके आसपास के क्षेत्रों की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हम पर लगता है, हमारी सरकार पर लगती है, मशीनरी पर लगती है और उस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा पर भी लगती है। मेरा दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर में है, जो चूंकि यहाँ पर में सिलेबस की बात की गई, बार बार ये कहा गया जो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का, मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहने से पहले हमें थोड़ा सा और भी विवेचना करना पड़ेगा, क्योंकि तक्षशिला के जो हिस्ट्री है वो कुछ इससे अधिक पुराने हमें मिलते हैं। अब ये एक बड़ा प्रश्न आता है जो किसी भी, चाहे वो सनातन धर्म के टेक्स्ट हों या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हों, बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार इसे जलाया और बर्बाद किया, इसके विस्तृत वर्णन हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात सर के सामने में रखना चाहता हूं, जो बिल्कुल ही सही कहा गया, जो उसको 3 बार अटैक हुआ था और कई सालों से इस पर ये चल रहे थे। तो वहां के जो पंडित थे, पंडित मतलब वहां के जो शिक्षक थे, वो उन शिक्षकों ने करीब 50 साल बख्तियार खिलजी के बर्बाद करने से पहले, 50 साल पहले, वो यहाँ से जितने भी संस्कृत और बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसे उन्होंने वो लाद करके यहाँ से तिब्बत ले गए थे और तिब्बत के मोनेस्ट्रीज में उन सभी संस्कृत टेक्स्ट को उन्होंने अपनी तिब्बतन में उसका अनुवाद किया था, उसकी वो छपाई की थी अपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर में। और जहां अभी जितने भी हमें मिल रहे हैं, यदि वो नालंदा के जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे वो प्रमाण वार्तिक हो चाहे कुछ भी हो, तो वो उन पंडितों को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो उन पंडितों ने अपने जीतोड़ कोशिश, अपने जान पर खेल करके उन सारे रिकॉर्ड्स जो भी वो बचा पाए, जैसा कि कहा गया जो 5 महीने तक लाइब्रेरी जलती रह गई थी, तो जो भी वो बचा पाए आज मंगोलिया में यदि मिल रहा है या पटना के बिहार रिसर्च सोसाइटी में यदि मिल रहा है, जिसे वहां से तिब्बत से घोड़ा और खच्चर पर लाद करके लाया गया था, या फिर अभी बीएचयू की यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, या जहां जहां कहीं भी हमें मिल रहे हैं, वो संस्कृत टेक्स्ट का तिब्बतन अनुवाद है, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है जो हम उसको, उन पुराने तिब्बतन को फिर से वापस संस्कृत टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी योग्यता को विकसित नहीं कर पाए हैं। और यही कारण है जो हम आज भी इस पर विवेचना नहीं कर पाते हैं, जो मुख्य रूप से जो नालंदा में पढ़ाई हो रही थी बच्चों की, उसकी बारीकी क्या थी। हम बात करते हैं जो वहां पर वार आर्ट की पढ़ाई हो रही थी, वार आर्ट की पढ़ाई की सिलेबस के बारे में जब हम वहां टटोलते हैं तो हम पाते हैं जो नहीं, वहां पर पीस की पढ़ाई अधिक हो रही थी, वार की पढ़ाई या तो नहीं हो रही थी या यदि हो भी रही थी तो बहुत कम हो रही थी। यही कारण है जो जब बख्तियार खिलजी आते हैं, बहुत ही छोटे तबके, छोटे सैनिकों के साथ वो आता है और अटैक करता है और यहाँ पर में उसको उस पर कब्जा कर लेता है। मेरा ये सबमिशन है जो इस विषय पर में फिर से इस हिस्ट्री की पड़ताल की जानी चाहिए, इस पर विवेचना की जानी चाहिए, जो क्या हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स थे उसमें हम अपने बच्चों को युद्ध की कौशल के बारे में हम कितनी जानकारी देते थे। तक्षशिला के जो हमें सिलेबस मिल रहे हैं, अभी तक जितने मिले हैं, उन तक्षशिला के सिलेबस में हमें सबसे अधिक कौशल के बारे में, युद्ध कौशल के बारे में पढ़ाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जब हम नालंदा आते हैं या फिर वापस इस नालंदा के बाद विक्रमशिला की चर्चा करें या फिर जिसकी भी चर्चा करें, तो वहां पर युद्ध कौशल के प्रमाण हमें कम मिलते हैं जो बच्चों को सिखाई जाती थी। क्या कारण था जो, क्या हमें हम इस बात से बेपरवाह थे जो पूरे भौगोलिक, पूरे वैश्विक स्तर पर क्या घटित हो रही है? क्या हमारे पंडितों को ये वो इतने दूर तक नहीं सोच पाते थे? या फिर यदि उन्होंने इस पर में इतना काम किया तो आखिर क्या वो 200 गांव के जो सपोर्ट की बात होती है, या उस समय में जो जितनी डायनेस्टीज थी, क्या उसने सक्रियता से भाग नहीं लिया था? क्या हमारे पाल वंश का जो कैपिटल था
वो पाल वंश इसके रक्षा के लिए वापस नहीं आए थे। हम जब 1197 की बात करते हैं तो 1097 में कर्नाट हमारे पास पहुंच चुके हैं और उनकी उनकी जो पूरी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो चुकी है नॉर्थ में। तो क्या उन लोगों को ये एक प्रकार से अवेयरनेस नहीं था जो नालंदा को बचा लेना कितना जरूरी था? तो हम विद्वानों से ये आग्रह करते हैं, तो यदि बख्तियार खिलजी ने इतने कम सेना के साथ आ करके इस यूनिवर्सिटी पर अटैक करके हमारी पूरी संस्कृति और सभ्यता को इतने पीछे ले जाने में सफल हो गई थी, तो क्या हम उन तत्वों की फिर से समीक्षा कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? तो यदि हमें संस्कृति और सभ्यता की, अपने भारतीय सनातन धर्म की या फिर बुद्धिस्ट की रक्षा करनी है, तो ये रक्षा हमें सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी और जुडिशियल सिस्टम से नहीं होगा। हमें अपने जो युद्ध कौशल की पढ़ाई है उस पर फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। और यदि हम इसको रिवाइज करते हैं और हम अपने लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तभी संभव हो सकता है। एक जो दूसरा पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है लिपि का। हम सब जानते हैं जो नालंदा में जितने टेक्स्ट मिले हैं और जिन टेक्स्टों को हम वापस लेने में सफल हुए हैं, उनमें से अधिक टेक्स्ट हमारे अपने बिहार के थे, चाहे वो उसकी लिपि मिथिलाक्षर थी अथवा हमारे ब्राह्मी के तो टेक्स्ट बहुत कम से कम मिले हैं वहां पर में। आखिर क्या कारण था जो उस समय में वो ज्योग्राफिकल एरिया हमें उसका डिसिप्लिन हम नहीं मानते थे और उस डिसिप्लिन से हम आगे जाकर के हमारे जो एजुकेशन सिस्टम थी हम उसको फॉलो करते थे। तीसरा चीज ये है, जो आज जो तिब्बत में हमारे टेक्स्ट रखे हुए हैं, क्या हम इस सेमिनार के माध्यम से हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास में जा सकते हैं जो उन पर एक एक्सरसाइज किया जाए? जो हमारा जो सारनाथ में हमारा तिब्बतन इंस्टीट्यूट है, उसके जो एक्सपर्ट हैं, उस एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट तो अभी कुछ दिन पहले उनका कोरोना में डेथ हो गया, अब मात्र एक एक्सपर्ट बच गए हैं और सांची में एक एक्सपर्ट बच गए हैं जो हमारे ये पुराने तिब्बतन को फिर से संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा एक गैप है जो हमारी लर्निंग मेथड में, क्या भारत सरकार इस ओर ध्यान देगी? जो भाषा एक अलग तत्व है लेकिन लिपि एक अलग तत्व है। यदि हम लिपि की कंटिन्यूटी की पढ़ाई हम अपने बच्चों को नहीं करेंगे तो यही हाल होगा जो हमारे पास जो शेष बचे हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय के जो हमारे पास में टेक्स्ट बचे हुए हैं, हम उसका भी लाभ हम अपने आज की पीढ़ी को नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज फिर से वो रिचुअल्स हो जाती है जो हमारे अलमीरा में बंद हैं, आते हैं लोग गौरव बताते हैं जो बहुत गौरवशाली हमारा था, लेकिन हमारे बच्चे उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं जो वहां पर में क्या शिक्षा दी जाती थी, जितने भी टेक्स्ट बचे हुए हैं उसके आधार पर में। तो ये हमारा आज का जो ये वेबिनार है, ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जो हम इस विषय पर फिर से सोचें, इस विषय पर फिर से शोध करें, जो वहां पर नालंदा में आखिर क्या थी, जो एक वहां रिमेन्स हैं वो हम देखें। लेकिन अभी भी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स है, जो अभी भी नालंदा में जितने उत्खनन हुए हैं वो मात्र और मात्र 20% ही उत्खनन हुए हैं। यदि उसको फिर से उत्खनन करवाई जाए तो अभी 80% उसके जो रिमेन्स हैं वो जमीन के अंदर दबे हुए हैं। लेकिन यदि सरकार नहीं अवेयर होगी, वहां के लोग नहीं अवेयर होंगे, और वहां पर सबसे खुशी की बात है जो बगल में अब यूनिवर्सिटी हो गई है, वो यूनेस्को का साइट हो गया है, और फिर भी यदि हम इस रिमेन्स को बचा नहीं पाते हैं, हम अपने अधिकारियों को संवेदनशील नहीं बना पाते हैं, वहाँ के जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, उनको हम इस बारे में नहीं बता पाते हैं, यदि यहाँ से कुछ निकलता है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो छोटे से कुछ भी निकलते हों, तो ये हमारे साक्ष्य हैं। और जो एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई होती है वो एक तरह से साइंस की पढ़ाई होती है। हमें हर एक बार ये प्रूफ करना होता है, जो हम अपने एविडेंस के द्वारा उसे प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे लिए एक संस्कृति और सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आपके लिए एक सिक्का हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो साक्ष्य हैं। तो इसको कैसे रक्षा की जाए, इस बारे में उनको अवेयर कराने के कोई मशीनरी अभी तक तो हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो ये इसका जो देन था, ये जो हमारी संस्कृति और सभ्यता में हमें यहाँ तक पहुंचाई थी, लेकिन हम उसको किस स्तर तक रख पाए हैं, ये आज की पीढ़ी को सोचना है। आपने मुझे अवसर दिया, हम आपको फिर से प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैरवलाल जी, आपने अच्छी बात बताई है। आप जैसा कि जानते हैं, हम लोग जो भी वेबिनार करते हैं
जो वेबिनार हम लोग करते हैं वो कंसर्न मिनिस्ट्री से हम लोग उसको शेयर करते हैं। तो आपने जो कहा ना कि इसको बताने के लिए, तो ये हम लोग सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। कहाँ गया? चला गया। सबको तो आ रही है अभी तो नहीं, आवाज क्यों नहीं? अब मिल रही है आवाज? आवाज मिल रही है? नहीं, क्या हो गया? अच्छा, ओहो, तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसमें शेयर करेंगे, इससे नहीं जा रहा है। अब आवाज मिल रहा है? आवाज का बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप तो जैसे जानते हैं कि हम लोग जो भी वेबिनार करते हैं उसको कंसर्न मिनिस्ट्री से उसको शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो उसमें जो आप बिंदु उठाए हैं उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसका जो फाइंडिंग होगा, मैं समझता हूँ कि जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने जो भी वेबिनार को शेयर किया गवर्नमेंट के साथ, तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होता है। अब वो थोड़ा एक्शन होने में हो सकता है कि किसी इशू पे जल्दी हो जाता है, किसी पे थोड़ा देर से होता है। तो आप जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का कुछ ना कुछ हल निकलेगा और उस पर चर्चा होगी फिर से। तो ये एक आपने जो बातें बताई हैं वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जरूरी हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, और सरकार भी इस पे कुछ करना चाहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब हम डॉक्टर ए.के. पांडे साहब से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बातों को कहें और वो वैलेडिक्टरी एड्रेस जो है वो दें। डॉक्टर ए.के. पांडे जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर नारायण। मैं सुन रहा था भैरवलाल दास जी ने जो बहुत से प्रश्न उठाए, मेरे भी मन में हमेशा से उठ रहे थे। आज के विषय के संबंध में जब मैंने जानकारी खोजनी चाहिए तो रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन बख्तियारपुर सामने आया, और उसके परिचय में लिखा गया था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करके इस शहर की स्थापना की। हम लोग अंदर से नालंदा और विक्रमशिला से जुड़े हुए हैं, हम लोग ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हम लोग शांति से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक बार मन विषाद से भर जाता है कि जितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं अपने विद्या के केंद्रों में, और जितना चर्चा कर रहे हैं, और जैसा सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम, इन सब चीजों पर इतना हम लोग जितना दिल से इसको मानते हैं कि बहुत सही है, लेकिन अगर सत्य में वो जैसे माना जाए तो कम से कम नालंदा के मामले में तो मुझे नहीं लगता है कि सत्य में वो जैसे यही है, बल्कि मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा में एक अंश की कहीं कमी हो रही है। वह है कि सत्य के लिए संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष कैसे किया जाए, वह भी हमारी शिक्षा में जुड़ा रहना चाहिए। शायद इसी नाते बौद्ध मठों में बाद में जो मार्शल आर्ट्स की शिक्षा शुरू हो गई थी, जब भी हम लोग देखते हैं चीन के बारे में कोई फिल्म, तो उसमें यह जरूर रहता है कि कौन सी मार्शल आर्ट किस गुरु ने शुरू की और उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, वह एक अलग चैप्टर रहता है। इसी क्रम में कभी कभी
मुझे महसूस होता है कि आज जो हमारे विद्या के केंद्र हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए। आखिरकार जब हम इतना इतिहास पढ़ते हैं, क्या उसे शिक्षा भी लेते हैं? और अगर शिक्षा लेते हैं उससे, तो क्या वह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मैंने जब शुरू में नालंदा के बारे में पढ़ा था, तो यह पढ़ा था इसमें 10,000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको मैं याद दिलाऊं, लगभग 50 साल पहले मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया था, तो उस समय वहां भी छात्रावासों में लगभग 10,000 छात्र रहते थे और उसके अलावा 15,000 छात्र डे स्कॉलर्स आते जाते थे शहर से। कुछ इस तरह का हिसाब था। मन में जो हमारे पिक्चर उभरती है, एक आकृति उभरती है कि इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र। बीएचयू की लाइब्रेरी सिर्फ 2 मंजिली है, इसकी लाइब्रेरी 9 मंजिली थी। तो आखिर कितना बड़ा ज्ञान का यह केंद्र रहा होगा और कहाँ सुरक्षा में चूक हुई और उसमें क्या कुछ भविष्य के लिए संदेह छुपा हुआ है या नहीं। इसीलिए मैंने इस तरह के जितने विनाश कार्य हुए वो एक बार मन में मेरे आते हैं। सोमनाथ मंदिर समझ में आता है। समझ में इसलिए आता है कि वहाँ दौलत थी, संपत्ति थी। संपत्ति की सुरक्षा न हो, कोई लूट ले जाएगा, और ऐसा हुआ। वो लूट गई, लेकिन इससे दूसरे को मिला न कुछ। यहाँ नालंदा में जो लूट हुई, इसमें तो सिर्फ नष्ट किया गया, पाने वाले को कुछ मिला नहीं। और सबसे हास्यास्पद बात जो मैं महसूस करता हूँ कि नालंदा के आसपास वहाँ के संस्थापक या वहाँ के बड़े प्रोफेसर या वहाँ के किसी बड़े जैसे भामाशाह या स्पॉन्सर का किसी को जानकारी नहीं है। जो जानकारी है, जो नाम आया, वह जिसने उसको बर्बाद किया। यह शायद यह जो इतिहास है उसकी एक क्रूरता है जो कि स्वाभाविक है, जो जीतने वाले का इनाम लेती है, हारने वाले को लोग अक्सर बुला देते हैं। खैर, मैं दूसरी जो चीज इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नालंदा विक्रमशिला के बारे में जो मेरे दिमाग में आती है, वह है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई और सनातन धर्म, जैन धर्म उसके पहले से थे, और उस सब का भी केंद्र यह था। किसी न किसी तरह से कोई केंद्र था या रहा होगा, क्योंकि शून्य से कोई चीज पैदा नहीं होती है। यह बात सही है कि 427 में कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। हो सकता है स्थापना की हो या क्या, हम पीछे जाके नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से इसमें सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध की भी धर्म की भी शिक्षा मिलती थी, और उसके लिए सारी दुनिया में दूर दूर से लोग आते जाते थे, चर्चा करते थे। तब दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है कि वह जो चर्चा करते थे, जो ज्ञान वो आपस में बांटते थे, वह समाज को किस तरह से आगे बढ़ाने में उसका इस्तेमाल होता था। आखिरकार सर्वधर्म एक तरह हो, यह तो समझ में आता है उससे। मान लीजिए बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया किसी ने, क्या लौट करके फिर समाज में जा करके उस शिक्षा का लाभ समाज को देते थे या नहीं देते थे? यह एक दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। जो दुनिया के और बड़े बड़े संस्थान हैं, कैम्ब्रिज और वो ऑक्सफोर्ड, ऐसे ही इतिहास में कहीं शुरू हुए, लेकिन उन्हें कोई बख्तियार खिल्ली नहीं मिल पाया, इसलिए वे विकसित होते गए और आज दुनिया के ज्ञान के बहुत बड़े केंद्र हैं। उसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े मंदिर
और जगह में, जैसे दक्षिण भारत के जो मंदिर आज भी हैं, उन्होंने हमलावरों का सामना नहीं किया, इसलिए शायद अब भी उसमें अपूर्व संपत्ति रहती है और वह बने हुए हैं। जो सत्ता के केंद्र हैं वे भी किसी तरह अपने को बनाए हुए हैं। तो आज जो जिन परिस्थितियों को में हम जा रहे हैं, क्या एक रिपीटिशन इसका तिब्बत में नहीं हुआ? आखिर यहाँ से जो पुस्तकें, जो चीजें दी गई थी, वे तिब्बत के मठों में थी। तिब्बत के मठों के शीर्ष जो शासक थे दलाई लामा थे, और एक बार फिर शायद उसी तरह से वो जो पराजय थी ज्ञान की, जो जैसे यह एक तरह से ज्ञान की पराजय हुई है विक्रमशिला और नालंदा में, उसी तरह से तिब्बत में भी एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। बहुत गहराई से तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि इसके अलग अलग अंग क्या थे, लेकिन यह भी रक्तहीन परिवर्तन हुआ है। कोई खून नहीं बहा। यहाँ जो नालंदा या सोमनाथ में तो लोगों को मारा गया, खत्म किया गया। यह नहीं पता है कि वहां मारा गया, खत्म किया गया, लेकिन यह कोई संघर्ष उसमें नहीं हुआ और एक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। आगे हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं, इतने केंद्र हैं और ज्ञान के बड़े बड़े हमारे केंद्र उसमें हैं। कुछ ऐसे हैं जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रक्षा मंत्री जो रक्षा सामग्री बनाते हैं, स्पेस रिसर्च करते हैं, वे सत्ता के साथ रहते हैं, उनकी सुरक्षा राजकीय रूप से होगी। लेकिन जो शुद्ध इंटेलेक्चुअल ज्ञान के केंद्र हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनके बारे में सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह अकबर ने दिया है। अकबर ने कहा है कि ये जो लोग बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानी होते हैं, ये सरकार के ही खर्चे में फलते फूलते हैं और जीते हैं, लेकिन लगातार सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इसलिए इस पर जो भी खर्च किया जाए वह धन की बर्बादी है। ये ऐसे सम्राट का कहना है जो कि बहुत लिबरल और ज्ञानी माना जाता है। उसने इस तरह के मत बताए। तो लेकिन यह जरूर है कि बौद्ध धर्म के का इतना बड़ा यह जो केंद्र था, इसके समाप्त होने से शायद बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान में अवश्य ही एक झटका लगा। और यद्यपि सारी दुनिया में यह फैला और फला फूला, लेकिन खुद हिंदुस्तान में आदमियों को, लोगों को यह सोचने को विवश होना पड़ा कि क्या शुद्ध अहिंसा पर आधारित समाज बहुत जिंदा रह सकता है। और यह मेरा अपना निजी चिंतन है कि जिन सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, कहीं न कहीं यह अवश्य महसूस किया लोगों ने कि वास्तविक जीवन में इसके अलावा मनुष्य में जिजीविषा भी होनी चाहिए, और शायद उसकी शिक्षा सनातन धर्म में ज्यादा अच्छी तरह से दी गई थी, जहाँ की अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध का आदेश दिया था। तो एक जो महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन या देश राष्ट्र व्यापी परिवर्तन हुआ इसके उत्थान और पतन के साथ, वह यही था कि शुद्ध ज्ञान, जिसको निरपेक्ष ज्ञान कहते हैं, न राज्य के समर्थन में न राज्य के विरोध में, वो कहीं न कहीं से इंस्टीट्यूशनली कमजोर हो जाएगा बाद में। जबकि वह ज्ञान जो या तो राज्य के समर्थन में है या वह आत्मरक्षा में सक्षम है,
वह जिंदा रहेगा, क्योंकि इतिहास बहुत ही क्रूर है। जो सर्वाइवल है, जिंदा रहना है, जो जिंदगी है, उसमें हमेशा संघर्ष है, और उस संघर्ष में जो भी कमजोर पड़ेगा वो उसका नाम इतिहास से समाप्त होना निश्चित ही है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल ने ये अपने एक छोटे से भाषण में कहा था कि धर्म, सत्य, सद्भाव ये सब चीजें अपनी तरफ हैं, लेकिन सर्वाइवल, सेल्फ रेस्पेक्ट वो दूसरी तरफ। और जीवन का सत्य संघर्ष और सर्वाइवल में ही है। मुझे नालंदा के विक्रमशिला के इतिहास से बहुत सोचने पर एक यही चीज समझ में आती है, शिक्षा कहिए या जो कहिए, कि ज्ञान के साथ शक्ति जोड़नी ही होगी, सद्भाव के साथ आत्मरक्षा भी जुड़ी रहती है। और जो भी संस्थान हमारे हैं, जो अच्छे संस्थान, वो कहीं न कहीं से सिर्फ ज्ञान में, जब ज्ञान योग में चले जाते हैं तो बहुत दिन तक नहीं रह पाते हैं। स्पेसिफिक नालंदा के बारे में सोच कहना था, लेकिन ऐसे सभी एक जनरलाइजेशन जो हमें लगा कि शायद एक इसका दूसरा पहलू भी है, वह यह है कि मनुष्य और सभी जीवों का एक उम्र होती है। कितने भी अच्छी से अच्छी चीजें हों, वो एक सीमा तक पहुंच करके शायद उसका एज खत्म हो जाता है, वह नहीं चल सकती है। अभी आज का जो उदाहरण है, कैमरा बनाने वाली सबसे अच्छी जो दुनिया की कंपनियां थी, वो 10,000 20,000 कैमरे बना रही थी, और एकाएक मोबाइल के आ जाने से ये कंपनियां बंद हो गई, उनका प्रोडक्शन खत्म हो गया, और सबके हाथ में कैमरे टहलने लगे। तो टेक्नोलॉजी और समय के साथ बहुत सी चीजें तो पीछे छूटती हैं। यह भी हो सकता है, एक बात यह भी हो सकती है कि जिस तरह का ज्ञान वो दे रहे थे, जिस तरह के ज्ञान का सेंटर वो था, शायद आने वाले युग के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं रहा हो। आज जो हम जिस शिक्षा पद्धति में काम कर रहे हैं, जो मूलतः ब्रिटिश लोगों ने यहाँ स्थापित की थी, तो हो सकता है कि यह उससे सुपीरियर हो रही है। खैर जो भी हो, इसके इंटेलेक्चुअल पहलू पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है कि क्या इस मामले में कुछ किया जा सकता था। लेकिन मेरा विश्वास है कि इतिहास से शिक्षा हमें लेनी ही चाहिए, और भविष्य में उसके लिए हम तैयार रहें। यही हमें सुनिश्चित करेगा कि लंबे समय तक एक अच्छे राष्ट्र के रूप में, एक अच्छे समाज के रूप में हम रह पाएंगे। इसमें सबसे खुशी की जो बात है, जो अभी पिछले 25-30 वर्षों में देखने को मिली है, वह यह मिली है कि इससे पहले के इतिहास में अधिक क्रूर और अधिक बर्बर लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स और पढ़े लिखों पर विजय हासिल की थी। यानी मेरा इसी से मतलब है सोमनाथ और इससे विक्रमशिला और नालंदा से। लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब जो साइंटिस्ट इंटेलेक्चुअल नासा में और यूएस के आर्मी में कहीं बेस पर काम कर रहे हैं, वे कभी अफगानिस्तान में लड़ने नहीं गए, लेकिन
उनके बनाए रॉकेट, उनके छोड़े गए मिसाइल, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ विनाश किया। और जो जबकि यहाँ के लोग ज़्यादा बहादुर अफगानिस्तान के और युद्ध के लिए तैयार थे। इसी तरह से अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा जाए तो यह भी इतिहास के इस क्रम का उलट है। रूस के भी जो इंटेलेक्चुअल और योद्धा हैं वे अपने बंकर में चुपचाप पड़े रहे। सारा रूस उसके मार्केट बड़े आराम से टहलता रहा। लोग सिनेमा देखते रहे, खरीदारी करते रहे, और वहां से उन्होंने यूक्रेन के कितने कितने बिल्डिंगों को हर दिन ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो नए युग के साथ आया है, टेक्नोलॉजी के साथ आया है। और यह एक रोशनी की लहर है कि जो भी पढ़े लोग हैं, लेकिन फिर भी जो लोग इन कामों में रिसर्च में लगे हुए हैं वहां भी कुछ इसी तरह सुरक्षा रखनी होगी। अभी एक फिल्म मैंने देखी थी, रॉकेटरी, जिसमें यह दिखाया गया था कि हमारे रॉकेट साइंस के इतिहास में 12 वर्षों की डिले इसलिए हो गई कि हम अपने एक साइंटिस्ट को बचा नहीं पाए षड्यंत्रों से, और वो कितने दिन जेल में रह गए सिर्फ इस नाते कि कहीं से एक विदेशी षड्यंत्रकारी ने उनको बता दिया कि नहीं, ये तो विदेशी जासूस हैं, जबकि वे सच्चाई और ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे थे। और बहुत बाद में देश ने उन्हें माना और पद्म अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया। तो ऐसी यही कुछ बातें जो हमें उद्वेलित करती रही उस विश्वविद्यालय से मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें थोड़ा बहुत एक्सेस हो सकता है क्योंकि मेरे व्यक्तिगत विचार कभी मैंने इससे किसी से शेयर नहीं किए, तो थोड़ा हो सकता है ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आपने इस पर ध्यान दिया उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद नारायण साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर पांडे। आपने अपने विचारों को रखा, वो आपके अपने विचार हैं जिनसे जो आपने उनको रखा। और अभी तो हम नालंदा के परिप्रेक्ष्य में जो कई चीज़ें आपकी ठीक लगती हैं जो आपने अभी रखा है उन बातों को, और आपको अपने विचार रखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। हमने शुरू किया प्रोफेसर वाई.डी. प्रसाद साहब से, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति की बात कही, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम आए तो पर आए तो वो शांति से रॉकेट पे पहुंच गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हालांकि जो वेबिनार होता है तो उसमें कई चीज़ें आती रहती हैं। आप जैसा जानते हैं, ये भैरवलाल दास जी कह रहे हैं कि हम लोग का जो ये प्रोग्राम होता है, जब जो भी वेबिनार हम लोग पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं, तो वो शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, खासकर मिनिस्ट्रीज के साथ। तो ये जो हम लोग शेयर करेंगे, देखते हुए कि भैरवलाल दास जी की जो लिपि पे अध्ययन की बात है, वो कहाँ तक सरकार में उसकी जरूरत महसूस करते हैं वो लोग, तो उस पर करेंगे। अभी हम सोचते हैं कि ये नालंदा एक ऐसा इशू है, एक जिसपे कुछ और काम करने की ज़रूरत महसूस हो रहा है कि इस पे कुछ और काम किया जाए। और उस पे यूनेस्को ने, जब हम लोग ये इसको डिज़ाइन किए कि ये वेबिनार करेंगे, तो उसके बाद यूनेस्को भी इस पे इंटरेस्ट ले रही है कि हाँ, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया बना वो और पुराने का कैसे रिवाइवल हो, कैसे इसका ग्लोबल स्टेटस फिर से कैसे इसको दिया जा सकता है। तो फिर दूसरा वेबिनार इस विषय पर होगा। और हमें बड़ी खुशी हुई जब हमारे प्रोफेसर युवराज देव प्रसाद जी ने अपना कंसेंट दिया और आज वो आ गए हम लोगों के बीच में, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद उनको हमने सुना है, तो ये इसके लिए उनको मैं विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैं अनुग्रहित हूँ। वो आ गए और उम्मीद करते हैं कि फिर आगे हम लोग का जो प्रोग्राम होगा उसमें भी वो हम लोगों के साथ आ जाएंगे, तो और अच्छा रहेगा प्रोग्राम।
बढ़िया हो जाता है। तो भैरवलाल दास जी भी हैं, ये इनकी इनकी अपनी इनका अपना रहता है, गांधी जी पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो और ये नालंदा यूनिवर्सिटी पे वो इनका है, वो लिपि के सिलसिले में या उत्खनन के लिए करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए, और प्रोग्राम को, हमारे वेबिनार को एक सक्सेसफुल वेबिनार बनाने के लिए। और इसी के साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। स्वयं सिद्धा प्रोग्राम को वाइंड अप कर लो। Yes, thank you so much for helping me for this program. For sorry, thank you so much for helping. Sorry, thank you so much for this program. Yeah, thanks a lot for this program. This program was a wonderful program, and I got to know a lot about Nalanda University. I got to know about its history. It was a very informative program. Thanks a lot, and I request all of you to please do come again. Let's have a discussion like this again in future. Thank you. नमस्ते।